Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. And today we have got very simple letter. Like after a long time, we have got like much simpler letters compared to what we have been doing previously. So this is the letter that we have, a very small letter. So it's not much there to tell you, but again, these small letters are good to understand what OIT is because more attention can be paid towards grammar and other things. But again, this is also very tricky letter as well. It's very small, appears to be very easy letter, but there is a bit of trick in this letter. So please listen to this video 2-3 times, because when you actually make English of these lines, it is not that easy as it appears, but it is not that difficult too. But at the same time, it depends upon entirely upon you. So I'm just going to start. So always start your letter from the lowest part or from the last part of the letter. So using the relevant information in the discharge plan, write a nursing letter about Sarah Keating to Mrs. Jan Pipo, District Nurse, Sarah Beach City Council, whatever the address is, asking for the follow-up care. So purpose तो हमें मिल ही गया that this letter is being written regarding Mrs. Keating who needs follow-up care, hence he is being referred to you. So इतना आसान भी पर्पस अगर आप लिखोगे तो भी पास हो सकते हो, ऐसा नहीं है you have to make a difficult purpose. अगर वैसे आप समझो तो मैं इस लेटर को ऐसे भी लिख सकता हूँ. If I do not go into complete elaboration of things, so this letter is being written regarding Miss Keating. I'm just telling you normal letter होता तो Miss Keating who needs follow-up care and hence she is being. That is how simple can be first paragraph. Actual में first paragraph में we want to tell the purpose, and this is how simple we can be in our first paragraph. So this letter is being written regarding Mrs. Keating who needs follow-up care, hence she is being referred to you. That's it. First paragraph is all done, all gone. No problem at all, even if you write this thing. But again, you have to find different tricks of the letter, but I'm telling you how simple can we make when it comes to OET letter. अगर आप ऐसा भी लिखते हो तो भी पर्पस पूरा हो चुका है. So there is no issue at all. But let's go ahead. Let's see what are the other things that are important in this letter and why I am saying this letter is difficult. Miss Pepper has been visiting Sarah twice weekly during her hospitalization, and that is where the letter has changed. So basically now the letter has become, rather than simpler letter, it has become a kind of a discharge back letter. Otherwise we should not call it a discharge back letter, क्योंकि इसमें कोई डिस्चार्ज बैक नहीं हो रहा, वो वापस अपनी जगह पे नहीं जा रहा, पर मोस्टली हम बोल देते हैं इसको डिस्चार्ज बैक लेटर, क्योंकि इसमें जो वर्डिंग्स यूज होनी है वो वैसे ही यूज होनी है जैसी डिस्चार्ज बैक लेटर में होते हैं, पर वैसे ही डिस्चार्ज बैक लेटर नहीं है. ये सिर्फ इतना सा लेटर है कि जब सारा कीटिंग हमारे हॉस्पिटल में एडमिट थी तो मिस पाइपर उसके पास आती थी डिस्ट्रिक्ट नर्स, और वो दो बार आती थी हफ्ते में ड्यूरिंग हर हॉस्पिटलाइजेशन, एंड शी इज फेमिलियर विद हर हिस्ट्री. तो डिस्चार्ज बैक लेटर्स में हमें सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री को नहीं लिखना होता, तो इसमें भी नहीं लिखना, क्योंकि शी ऑलरेडी, अब जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, हम पाइपर को लेटर लिख रहे हैं, अगर मैं उसको बताता हूँ कि मिस किटिंग लिव्स विद हर हस्बैंड, व्हाटएवर, मैं जो भी उसको बताता हूँ, एंड शी इज अ लाइब्रेरियन, तो ये तो पहले ही बोल दिया है हमें दैट पाइपर को ये बात पता है. तो अगर हम ये वाला टॉपिक लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उसको पहले से ही पता है. तो यानी ऐसे लेटर्स में सोशल हिस्ट्री को नहीं लिखना होता, बिकॉज शी इज ऑलरेडी फेमिलियर विद इट. तो जब वो पहले से ही फेमिलियर है तो हम उसको दोबारा क्यों बताएंगे. ओईटी के बाकी रूल्स 180 to 200 वर्ड्स लिखने हैं और नो मोर देन 25 लाइंस. प्लीज इसका गलत मतलब मत लेना, इसको भूल जाओ, ये हमें जरूरत नहीं है पढ़ने की. वैसे हम इसको करते हैं लेकिन ये नेचुरली अपने आप हो जाता है. डू नॉट यूज नॉट फॉर्म, यूज लेटर फॉर्म, यूज फुल सेंटेंसेस. तो ओवरऑल लेटर हमें ये निकल के आया है, मिस पाइपर के पास सारा किटिंग को भेजना है. किस लिए भेजना है? फॉलो अप केयर के लिए. बस वो हमने बना ही दिया पर्पस. अब इसमें चेंज क्या कर सकते थे? कुछ चेंजेस हैं जो हम कर सकते थे, क्योंकि वो पहले से उसके बारे में जानती है, तो हम ये कह सकते थे दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग वन ऑफ यूर नॉन पेशेंट्स, या रिगार्डिंग यूर नॉन पेशेंट. आप कुछ जानते हो उस पेशेंट को, रिगार्डिंग योर, इस चीज के आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं. दैट इज हाउ यू फेच मार्क्स. सो इस लेटर में बस आपको ये फर्क डालना था, दिस लेटर इज बीन रिटन रिगार्डिंग योर नॉन पेशेंट.
अब ये लेटर ट्रिकी से सिंपल हो गया. So this letter is being written regarding your known patient, Miss Kitting, who needs follow-up care. अब ये लाइन लंबी हो गई तो इसे फुल स्टॉप डाल दो. Hence she is being referred to you. First paragraph is all done. आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप इतना सिंपल भी लिखते हो OET में. फर्स्ट पैराग्राफ खत्म. पर्पस ऑफ द लेटर डन. सोचो इतने में आप 350 मार्क्स ले सकते हो. इतना सिंपल. नाउ कमिंग बैक ऑन टू द पॉइंट्स. सेकंड चीज जो आप पढ़ते हो एग्जाम में आफ्टर दिस, ये पढ़ते हो डिस्चार्ज प्लान. क्योंकि फॉलोअप केयर में करना क्या क्या है, ये फॉलोअप केयर की एलोबरेटेड फॉर्म होती है, एक्सप्लेन्ड फॉर्म होती है. तो फॉलोअप केयर में क्या करना है, ओरल एम्पिसिलिन को कंटिन्यू करना है 4 टाइम्स अ डे, जो कि 31 अक्टूबर तक चलेगी. तो जो भी आज की डेट है 31 अक्टूबर तक चलेगी. तो अगर मैं इस पैराग्राफ को भी आपको, फर्स्ट पैराग्राफ मैंने आपके सामने बना दिया है, सेकंड पैराग्राफ में आपके सामने बनाने की कोशिश करता हूँ. तो सेकंड पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, सॉरी लास्ट पैराग्राफ बनेगा. तो पहले से ही आपको वैसे जब आप पेपर देने जाओगे तब तक आपको ये सब चीजें आती होंगी. फर्स्ट पैराग्राफ आप बना चुके हो, लास्ट पैराग्राफ देखते हैं कैसा बनेगा. एक मिनट, आई नीड सम स्पेस, सो आई एम जस्ट गोना रब ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ. आई नीड सम स्पेस. सो मैं आपको लास्ट पैराग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ सबको. डिस्चार्ज प्लान में कैसे लिखना होता है. सबसे पहली लाइन डिस्चार्ज प्लान में हमेशा लिखते हैं, इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड. इसको अच्छे से याद कर लो प्लीज. अगेन मैं हमेशा कहता हूँ 2-3 बार एक ही लेटर को सुन लो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े. इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड. बाकी लाइन सेम, कंटिन्यू ओरल एम्पिसिलिन 250 mg 4 times a day, which passive voice, जिसको कनेक्टर लगाओ, which needs to be seized, जिसको रोकना है मतलब बंद करनी है, या ऐसे लिख दो which will be seized, जो की जाएगी, ऐसा भी लिख सकते हो. पैसिव वॉइस में बी प्लस थर्ड फॉर्म जरूरी है कि डॉक्टर के द्वारा या आपके द्वारा. तो which will be seized on 31 अक्टूबर का ओ बड़ा अक्टूबर 2010. बिल्कुल आराम से. सेकेंड लाइन, मॉनिटर ग्राफ्ट साइट एंड डोनर साइट ऑन थाई फॉर द साइंस ऑफ इन्फेक्शन और इंटरफेरेंस. सो अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो पहले ऑब्जेक्ट को लिख दो, ग्राफ्ट साइट एंड डोनर साइट कोमा बोथ पैसिव वॉइस शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म शुड बी मॉनिटर. पहले ऑब्जेक्ट को लिख दो, किस चीज को मॉनिटर करना है, तो वो ऑब्जेक्ट होता है, इस चीज को मॉनिटर करना है. बोथ शुड बी मॉनिटर्ड ऑन थाइज फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन. सेकेंड लाइन भी आपके ओवर होगी. देखो कितने आसान से फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ तैयार हो रहा है. मॉनिटर कंप्लाइज विद मेडिकेशन. अब ये लाइन थोड़ी सी मुश्किल है, काइंडली सिंपल बना दो इसको. काइंडली वाला सेंटेंस, काइंडली मॉनिटर हर कंप्लायंस with medications. Twice weekly visits to psychologist and also encourage her for visits to psychologist. पहले easy line लिखो, फिर बाद में लिखो twice a week. देखिए आपका लास्ट पैरा भी अरेंज हो चुका है बिल्कुल आसानी से. अगर आप ये भी लाइन लिखना चाहते हो कि अपॉइंटमेंट पहले ही फिक्स कर दिए हैं, सो एंड अपॉइंटमेंट्स हैव ऑलरेडी बीन, ये पैसिव वॉइस अगर वो काम हो चुका है तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म, हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म, हैव ऑलरेडी बीन ऑर्गेनाइज्ड. देखिए आपका लास्ट पैराग्राफ भी तैयार हो गया. इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड कंटिन्यू ओरल एम्पिसिलिन 4 times a day, which will be seized on 31st October. Full stop. Graft site and donor site both should be monitored on thighs. ये thighs word थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो इसको हटा देते हैं. ऐसे ही वर्ड्स को हटा दो जो फ्लुएंसी को खराब करे. Should be monitored for signs of infection. Kindly monitor her compliance with the medication and also encourage her for visits to psychologist twice a week. And appointments have already been organized. बिल्कुल simple. फर्स्ट पैराग्राफ ये रहा. जस्ट अ सेकेंड. फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे,
लास्ट पैराग्राफ यहाँ पे आपके 2 पैराग्राफ्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, जो सबसे मार्क्स वाले पैराग्राफ्स होते हैं, वो तैयार हो चुके हैं। और इसमें आप वो वाला पॉइंट भी डाल चुके हो रिगार्डिंग योर नॉन पेशेंट। तो आपके पॉइंट्स पूरे हो चुके हैं। आपको अब इस लेटर में कुछ मुश्किल करने की जरूरत नहीं है। अब फिर भी हम बाकी लेटर पढ़ लेते हैं। देखो अभी तक हमने सिर्फ लास्ट पैराग्राफ पढ़ा था, तब इन 2 चीजों से फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, तैयार हो जाते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। मिस सारा किटिंग, एज 20, अनएम्प्लॉयड। तो यानी ये अनएम्प्लॉयड है और मिसेज नहीं है, मिस है। तो ये मेरे को ठीक करना पड़ेगा, MS लिखना पड़ेगा। MS किटिंग, नहीं तो मिस भी लिख सकता हूँ, MISS किटिंग। ये वो ऐसे नहीं, अनएम्प्लॉयड है तो यहाँ पे ये नहीं दिया मैरिड है या नहीं है, तो हाँ MS यूज करते हैं। आगे चलते हैं और इन्फॉर्मेशन जानते हैं। द पेशेंट हैज बीन इन योर केयर एंड इज नाउ गोइंग होम फ्रॉम द हॉस्पिटल। आपके पास 2 अक्टूबर को आया था, 2 को, और 5 को डिस्चार्ज हो रहा है। तो आज की डेट हमेशा लास्ट वाली डेट होती है, तो 5, यानी 31 तक मेडिकेशन कंटिन्यू करनी है। तो मतलब वो बात ये थी कि 5 को डिस्चार्ज हो रहा है, तो अभी आपको कुछ 26 डेज और मेडिकेशन को कैरी करना है। इन्फेक्शन ऑफ स्किन ग्राफ्ट ऑन राइट फोरआर्म, तो इस चीज के लिए हमारे पास आया था। ये मेन रीजन था पेशेंट के आने का। साइकेट मेडिकल प्रॉब्लम्स, वैसे तो मेडिकल प्रॉब्लम्स लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसने बोला था, ये तो पहले से ही पता है। तो अगर आप इस पैराग्राफ को कम भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है डिप्रेशन के साथ। प्रीवियस एपिसोड्स ऑफ सेल्फ म्यूटिलेशन है। प्रीवियस एडमिशन हुआ था 5 सितंबर को, तो इस बार हुआ था 2 अक्टूबर को। यानी पिछले महीने भी हमारे पास आई थी विद बर्न्स टू द राइट फोरआर्म। और उस टाइम पे जो बर्न्स हुए थे वो शायद उसने खुद किए थे। वैसे भी एपिसोड्स ऑफ सेल्फ म्यूटिलेशन है, डिप्रेशन का केस है, और सस्पेक्टेड सेल्फ हार्म था पिछली बार की। तो हमने उसको 15 सितंबर को रिलीज कर दिया था, 10 डेज रख के, और स्किन ग्राफ्टिंग की थी। और अब उसी ग्राफ्ट में इन्फेक्शन हो गई। ठीक है, इसके अलावा पढ़ते हैं डेली ड्रेसिंग। तो जब हमारे पास पेशेंट आया, मैं यानी कि ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, डेली ड्रेसिंग वाज डन। डेली ड्रेसिंग ऑन द फोर आर्म वाज डन। एरिया को अब खुला छोड़ दिया है। इंट्रावीनस एम्पिसिलिन वो पेशेंट ले रहा है, और साइकेट्रिस्ट ने उसको देखा था। तो मतलब ये पेशेंट साइकेट्रिस्ट के द्वारा देखा गया था। IV एम्पिसिलिन ले रहा है, तभी तो उसको ओरल एम्पिसिलिन पे डालना है। और फैमिली लिव्स विद पेरेंट्स एंड यंगर ब्रदर, रिसीविंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स विद द पेरेंट्स एंड सिबलिंग। तो ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो अब मैं आपको ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन पहले बना रहा हूँ, क्योंकि सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री ऐसे लेटर्स में लिखना नहीं होता। तो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि 3rd पैराग्राफ, नॉर्मली 3rd पैराग्राफ, लेकिन इस लेटर में शायद 2nd पैराग्राफ बने। तो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, आराम से देखना प्लीज। जब इस लेटर को सुनोगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्लीज पेशेंस से सुनना, क्योंकि फिर आपको दोबारा दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये वाले पैसिव वॉइस हमेशा वॉज वर थर्ड फॉर्म। डेली ड्रेसिंग्स टू द लीशन एरिया, lesion on forearm was done, and then area was left uncovered। एरिया को छोड़ दिया, पहले ड्रेसिंग की गई थी, अब एरिया को ओपन छोड़ दिया। ठीक है। ऑल्सो IV ampicillin was given and the patient was also seen by। was के साथ थर्ड फॉर्म लग रही है और कुछ भी नहीं लग रहा, सब पैसिव वॉइस है कि इसके द्वारा उसके द्वारा was seen by the psychiatrist। सो ये बन गया आपका ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन डेली ड्रेसिंग टू द लेशन ऑन फॉर्म वाज डन, एंड देन द एरिया, देन की बजाय अच्छा लगेगा लेटर, बाद में। एंड लेटर एरिया वाज लेफ्ट अनकवर्ड, आल्सो IV ampicillin was given this। सो फैमिली हिस्ट्री की इतनी जरूरत नहीं है, और लास्ट पैराग्राफ हमारा तैयार है। तो एक तरह से हमारा लेटर पूरा तैयार हो चुका है। अब देखते हैं, अब हम इसको पढ़ के देखेंगे कि क्या क्या कमी है, हम इसको और बेटर क्या कर सकते थे।
और क्या बना सकते थे। चलिए अब मैं आपको एक नॉर्मल पेज पे ले जाता हूँ ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअल में ओईटी लेटर क्वेश्चन पेपर को नहीं देखना होता। लास्ट में जब आप लेटर पूरा कर लेते हो तो आपका लेटर कैसा बना है दैट डिसाइड्स योर डेस्टिनी, कि आपने लेटर को कैसा एक्सप्लेन किया है। तो आपने लेटर ये लिखा है, दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिसेस किटिंग हु नीड्स फॉलो अप केयर, हेंस शी इज बीइंग रेफर्ड टू यू। ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन डेली ड्रेसिंग वाज डन एंड शी वाज सीन बाय दिस एंड दिस। इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड अगर आप ओरल एम्पिसिलिन दे दो, ये सब दे दो, साइंस ऑफ इन्फेक्शन। अब प्रॉब्लम क्या है इस लेटर में कि आपको मैं मतलब आपको मैं आज ये सिखा रहा हूँ कि व्हाई डू वी पुट, इस पैराग्राफ को हम थोड़ा और अच्छे से क्यों लिखते हैं, क्योंकि अब ये नहीं पता लगा कि ये फोर आर्म में लीशन कैसे आया, पेशेंट को प्रॉब्लम क्या थी। कि अगर ये वो लेटर भी है जिसमें हिस्ट्री को नहीं लिखना होता तब भी पेशेंट के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम आपको चेंज करवाते हैं। तो हु वाज एडमिटेड टू अवर हॉस्पिटल ड्यू टू infection of skin graft फिर लाइन लिखनी पड़ती है आफ्टर ट्रीटमेंट हर कंडीशन इज बेटर, तभी कहानी पूरी होती है। इसलिए फर्स्ट पैराग्राफ को हम ऐसा बनवाते हैं, बेटर बट शी नीड्स फॉलो अप केयर एंड। अब देखो अब आपको ये लेटर मच बेटर और कंप्लीट लगेगा कि ये लेटर उस नॉन पेशेंट के लिए लिख रहे हैं जो हमारे हॉस्पिटल में इन्फेक्शन के लिए आई थी स्किन ग्राफ्ट के। आफ्टर ट्रीटमेंट उसकी कंडीशन बेटर हो गई है बट उसको फॉलो अप केयर चाहिए, इसलिए आपके पास भेज रहे हैं। जब हमारे पास हॉस्पिटल में आई तो इस स्किन ग्राफ्ट के लिए हमने डेली ड्रेसिंग की इन्फेक्शन के लिए, फिर एरिया को खुला छोड़ दिया, एम्पिसिलिन दिया क्योंकि इन्फेक्शन थी इसलिए हमने एम्पिसिलिन दिया। ये इन्फेक्शन यहाँ से पता लगेगा तभी तो एम्पिसिलिन दी। अगर आप ये चीजें नहीं लिखते हो वाज एडमिटेड टू अवर हॉस्पिटल तो लेटर इनकम्प्लीट रह जाता है। इसीलिए मैं पर्पस को छोटा लिखवाने की बजाय हमेशा आप सबको पर्पस ऐसे सिखाता हूँ कि अगर आप बाय चांस ऐसा कोई गलती भी करो कि आपने सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री नहीं लिखी क्योंकि आपको दिया नहीं था तो आपसे लेटर गलत ना हो। तो सिंपल स्ट्रेटेजी ये है कि फर्स्ट पैराग्राफ में पूरा एक्सप्लेन करो कि इन्फेक्शन के कारण आया था, ट्रीटमेंट के बाद बेटर हो गया लेकिन फॉलोअप केयर चाहिए इसलिए भेज रहे हैं। फिर ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन डेली ब्लीचिंग वाज डन। अब आता है वर्ड काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 1632 ऑलमोस्ट इसको हाफ मान लेता हूँ यानी ये हो गए 40 वर्ड्स। 16 + 16 ये हो गए 32 वर्ड्स और ये 16 + 16 + 16 प्लस यानी कि 64 वर्ड्स। 32 × 2 64। तो मेरा टोटल वर्ड काउंट हो गया 40 + 32 + 64 इज इक्वल टू 4 2 6 6 और 3 9 9 और 4 136 वर्ड्स हो चुके हैं। अभी भी देखो मेरा लेटर पूरा नहीं हुआ यानी कि अब मुझे लेटर का वर्ड काउंट भी पूरा करना है। तो अब मुझे ये वाली लाइन जरूरी हो जाती है जो मैं आपको कहता हूँ इन लेटर्स में बड़े काम की होती है। अब ये वाली कहानी लिखो कि आप तो इस पेशेंट को जानते हो एज यू नो, या आप 2 बार विजिट कर चुके हो एज यू हैव बीन विजिटिंग द पेशेंट। ऐसे ऐसे टेंसेस बनाओ। ड्यूरिंग हर हॉस्पिटलाइजेशन आप पेशेंट को विजिट कर ही रहे थे उसकी हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम। कभी भी एज यू हैव बीन विजिटिंग, एज वाला सेंटेंस कभी भी सो के बिना खत्म नहीं होता। जैसे कि आप विजिट कर रहे थे पेशेंट को, सो यू ऑलरेडी आर अवेयर अबाउट हर मेडिकल हिस्ट्री। अब आपके लिए इजी हो जाएगा। ऑल्सो यू नो, अब मैंने एज नहीं लगाया ऑल्सो लगाया तो अब मेरे को सो लगाना कंपलसरी नहीं है। ऑल्सो यू नो शी इज नॉन केस ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए कितना इजी हो जाएगा और वर्ड काउंट भी अपने आप पूरा हो जाएगा। शी इज अ नॉन केस ऑफ डिप्रेशन एंड she is a known case of depression and had previous episodes, पहले भी एपिसोड्स हुए हैं ऑफ सेल्फ म्यूटिलेशन, ये भी आपको पता ही है। देखिए she was also admitted। अब मैंने पूरा लेटर बता दिया उसको एडमिटेड। अब
अब एग्जामिनर को क्वेश्चन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी. शी वॉज ऑल्सो एडमिटेड ऑन 5 September ड्यू टू burn in forearm for which skin graft was applied. तो मैंने ये भी बता दिया कि ये स्किन ग्राफ्ट भी हमने ही लगाया था या हमने नहीं लगाया. तो ये बता दिया कि पहले भी शी वाज आल्सो एडमिटेड ऑन 5 September ड्यू टू बर्न इन द फॉर विच स्किन ग्राफ्ट वाज अप्लाइड. अब ये कहानी और भी इजी होगी. सो नाउ हमने इसका बैकग्राउंड भी बता दिया. और ये जो राइट बर्न हुआ था विच was suspected to be due to self harm. तो अब आपको ये बताने से और क्या अच्छा हो गया कि अगर हम यहाँ पे कर रहे थे ना, यहाँ से कहीं से ये नहीं पता लग रहा था कि साइकेट्रिस्ट को क्यों दिखाया आपने यहाँ पे. देखो ये भी बात थी, अगर आप ध्यान से समझते तो पेशेंट वाज आल्सो सीन बाय साइकेट्रिस्ट. चलो ये तो नॉन केस है, लेकिन हमें भी तो लेटर में बताना चाहिए था ना ये नॉन केस ऑफ डिप्रेशन है, सेल्फ म्यूटिलेशन है, तभी तो ये साइकेट्रिस्ट वाला पॉइंट वैलिड होगा. सो दिस इज व्हाट ओईटी इज ऑल अबाउट. जो आप लिख रहे हो आपको पता, यानी इस पैराग्राफ से आपको ये पता होना चाहिए. यहाँ पे भी कहा था कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, तो साइकोलॉजिस्ट के वाला डाटा भी जरूर कवर होना चाहिए कि उसको डिप्रेशन है और ये सब चीजें. सो ये ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, सो ड्यूरिंग दिस हॉस्पिटलाइजेशन. अब और भी इजी हो गया कि ये वाली जो हॉस्पिटलाइजेशन है डेली ड्रेसिंग की थी, यानी इस बार जो इन्फेक्शन के लिए आया था डेली ड्रेसिंग वाज डन एंड लेटर एरिया. अगर ये वाला लेटर अब पढ़ के देखते हैं फ्लो में कैसा जाता है, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा. अगर आपको 450 मार्क्स लेने हैं ओईटी में तो कैसे आते हैं. और वर्ड काउंट अपने आप पूरा हो जाएगा. अगर आप अच्छा लेटर लिखोगे अपने आप पूरा हो जाएगा. 16 + 16 + 16 और ऑलमोस्ट 6-7 वर्ड्स, यानी अगर मैं 48 वर्ड्स ये मानूं तो अराउंड 55 वर्ड्स हैं, प्लस 54 कर लेते हैं तो 6 और 4 10 और 6 + 3 9 और ये बन गए पूरे आपके 190 वर्ड्स. अब ओईटी का लेटर जब अपने आप 180 to 200 वर्ड्स के बीच में आने लग जाए, समझो आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो. तो अब इस लेटर को फ्लो के लिए पढ़ के देख लेते हैं. दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग योर नॉन पेशेंट मिस किटिंग हु वाज एडमिटेड, एमएस कर देते हैं इसको, who was admitted to our hospital due to infection of skin graft. After treatment, her condition is better, but she needs, यहाँ पे she डाल देते हैं, but she needs follow-up care. Hence, she is being referred to. इतनी बार आपको पेपर में भी रिवाइज करना चाहिए. As you have been visiting the patient during her hospitalization, so you already, as वाला sentence so के बिना खत्म नहीं होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. आप विजिट कर रहे थे, so you already are aware about her medical history. Also, you know she is a known case of depression and had previous episodes of self-mutilation. She was also admitted on 5 September due to burn in forearm. यहाँ पे राइट वर्ड डाल देते हैं, थोड़ा और फ्लो बन जाएगा क्योंकि वहां पे दिया हुआ है. अगर दिया हुआ है तो ही डालना, अपने आप नहीं डालना. ड्यू टू बर्न इन द राइट विच वॉज सस्पेक्टेड टू बी ड्यू टू सेल्फ हार्म. ये लाइन बनानी थोड़ी मुश्किल होती है. अगर ये लाइन नहीं बन रही तो प्लीज हटा दो. इतनी लाइन के लिए रिस्क मत लो प्लीज. अगर लिखनी है तो विच वॉज सस्पेक्टेड टू बी ड्यू टू सेल्फ हार्म. ये लाइन बहुत मुश्किल से बनती है, पढ़ने में बड़ी इजी लगती है पर बनती मुश्किल से. फॉर विच स्किन ग्राफ्ट वॉज अप्लाइड. अब एग्जामिनर को पता लगता है फिर यही स्किन ग्राफ्ट में इन्फेक्शन हुई थी. अगर आप लिखना चाहते हो इस लाइन को थोड़ा और क्लियर करें, फॉर विच स्किन ग्राफ्ट अप्लाइड ड्यूरिंग दिस हॉस्पिटलाइजेशन as she got infection in the skin graft. अब और रिलेट करना चाहते हो, so daily dressing. देखा फिर दोबारा अगर as से शुरू हो रहा है तो so के बिना खत्म नहीं होगा. So during this hospitalization as she got infection हो गई थी, होने की इंग्लिश हमेशा got. She got infection, so daily dressing to the lesion on the forearm. अब इस लेटर में 1% की भी कमी नहीं है और वर्ड काउंट भी आपका बिल्कुल 95 to 200 पे आ गया. तो मतलब परफेक्शन को अटेन कर लिया आपने.
और अपने आप में ये लेटर पूरा हो चुका. For which skin graft was applied during this hospitalization as she got infection in the graft, so daily dressing to the lesion on the forearm was done, and later area was left uncovered. Also IV ampicillin was given and the patient was also seen by psychiatrist. It would be, अब ये psychiatrist वाला point ये justify कर रहा है depression वाला. It would be greatly appreciated if you could continue oral ampicillin, which will be seized on this graft side. Both should be monitored for the signs of infection. Kindly monitor her compliance with the medication and also encourage her for visits to cycle twice a week, and appointments have already been organized. Perfect. So this is how you write. So when letters like these come, जिसमें social history और medical history पता होती है, या discharge back या referred back letter होता है, तो उसमें आपको ये word बहुत काम आएगा, सबसे बड़ा punch. और उसके बाद जो काम आएगा आपको as और so का combination. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट. So please again, it's very easy to listen, but इसको देख के 2 बार 3 बार लिखो. लिखने से ही आपको याद रहेगा, पेपर में आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे, and that is how you would be able to attain perfection. अगर आपको परफेक्शन तक जाना है, अगर आप में से किसी का भी मन A ग्रेड लेने का करता है, तो फिर आपको ये 2 3 4 बार देखना भी चाहिए और उसके बाद बिल्कुल सेम लिखना भी चाहिए. जब आप सेम लिखते हो तो कुछ सीखते हो. हाँ, अगर आप मेरे से बेटर लिख सकते हो वो अच्छी बात है, लेकिन प्लीज ओईटी के पेपर को कभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना. ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि इतना आसान होना चाहिए एग्जामिनर का. आप सोचो, आपका एग्जामिनर जब पढ़ेगा, आपका क्वेश्चन, आपका आंसर शीट पढ़े और उसको सिर्फ 3 मिनट लगे पढ़ने में, तो वो आपसे कितना खुश होगा. सिंपल ऐसे, दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग योर नॉन पेशेंट मिस गेटिंग ड्यू टू इन्फेक्शन, better needs follow-up care. As you have been visiting, so you are already aware of her history. As you know, also you know she has previous episode. She was admitted on 5th September for the burn which was suspected to be due to self-harm. तो यहाँ पे infection graft आ गया, उसको पता लग जाएगा. So skin graft was applied, या for which की जगह आप यहाँ पे so भी लिख सकते हो. For so skin graft was applied during the as she got infection, so daily dressing to the lesion arm was done, and later area was also IV ampicillin was given, and the patient was seen by psychiatrist. It would be greatly appreciated if that is how he will give you marks. The less time he takes to check your writing, the more marks you will get. So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967 34256. Thank you very much, and please listen to this video 5 times, 10 times. अगेन आपको लगता होगा मैं एग्जेजुरेट कर रहा हूँ, नहीं नहीं, बिल्कुल एग्जेजुरेट नहीं कर रहा. कम से कम 3-4 बार तो सुनना ही चाहिए ऐसे लेटर्स को, ताकि आप परफेक्शन को अटेन कर सको. थैंक यू.